حالات عذرا کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں ہمایوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, لیکن وقتاً فوقتاً ہم ایسے شمارے بھی پیش کرتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی اسکیم, کسی پروگرام, کسی محکمے کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائے, جس معلومات سے نوجوانوں کو بھی فائدہ ہو اور باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو آج کا جو پروگرام ہے ہمارا وہ بھی ایک ایسا ہی پروگرام ہے جس میں ہم کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کے حوالے سے بات کریں گے, اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں وائس چیئر پرسن کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ صاحبہ. آپ کا خیر مقدم ہے بہت بہت دوردرشن کے اسٹوڈیوز میں اور حالات عذرا کے پروگرام میں. تو بات کریں گے ان سے KVIB یا کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کے حوالے سے. میں نے پہلے بھی کہا اس میں بہت سی اسکیمز ہیں, نوجوانوں کے لیے ہیں, ٹریننگ کی ہیں, امپلائمنٹ کی ہیں, لون کی ہیں, امپلائمنٹ جنریشن کی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اب آغاز میں کریں گے, تھوڑی سی آپ انٹروڈکشن دے دیں گے ہمیں KVIB کس لیول پہ کہاں کہاں کام کرتا ہے. دیکھیے کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ, اس کی کچھ پارٹس میں آپ کو پہلے ڈیفینیشن سمجھا دیتی ہوں, میری ناظرین یہ سمجھیں اس محکمے میں کام کیا ہو رہا ہے, اسی حوالے سے وہ اسکیمز کا لابھ اٹھا سکتے ہیں. کھادی جو ہم عام طور سے جانتے ہیں کہ کھادی سفید کپڑا ہے جو بنائی اور ویونگ اور سپننگ کے تحت بنتی ہے. ہینڈلوم پہ ہینڈلوم نہیں, اچھا یہ کمپلیٹلی لوم پہ بنتا ہے. ہاں لوم پہ بنتا لوم پہ بنتا ہے ویونگ کر کے. جی کھادی کشمیر میں پشمینہ ہے. سفید کپڑا UP, بہار, باقی سٹیٹس پہ سفید کھادی کا کپڑا, کاٹن, کیونکہ ہمارے یہاں کاٹن نہیں ہے, ہمارے یہاں وول ہے, ہمارے یہاں پشمینہ بنتا ہے, تو اس کو کھادی کہتے ہیں. ولیج انڈسٹری ہوا ہمارے یہاں پہ جتنے بھی گاؤں ہیں ان کا جو ہنر ہے, آرٹیزن ہے, جتنی بھی ولیج انڈسٹری ہے, جو بھی ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز ہے, اس میں ہمارا والنٹ کا کام آ جاتا ہے, پیپر میشی آ جاتا ہے. آپ پورے ہندوستان میں کوئی بھی ہاتھ سے بنی ہوئی چیز, ولیج میں بنی ہوئی چیز, وہ اس میں آ جاتی ہے. اور اس محکمے کو منسٹری آف MSME دیکھتی ہے. کچھ فنڈنگ وہاں سے ہو رہی ہے اور پچھلے سال سے ہمارے UT گورنمنٹ بھی اس میں فنڈ کر رہی ہے. ہمارے یہاں پہ کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ میں بہت سارے کام ہے. یہ بڑا چھوٹا سا محکمہ دور سے نظر آتا ہے, لیکن صحیح معنی میں گاؤں جو بھی ہنر ہے اس کو ہم کیسے اسکل ڈیولپمنٹ کریں اور وہ اپنا کاروبار اسی ہنر کو لے کے کیسے بنا سکتے ہیں, ہمارا یہی کام رہتا ہے. دیکھیے آپ نے بات کر دی جیسے کہ جو گاؤں میں دیہات میں بیسک لیول کا کام ہے, جو جسے ہم کہتے ہیں کاٹیج انڈسٹری, وہی اس کا کاٹیج انڈسٹری بھی نہیں نام دیں گے, ولیج انڈسٹری صحیح نام, کیونکہ کاٹیج انڈسٹریز میں مشین آ جاتی ہے. اس میں بالکل ایبسلیوٹ مشین نہیں ہے, ہاتھ کا کام ہے, اور کشمیر میں ہاتھ کا کام بہت ہوتا ہے. آپ نے بھی یہ کہا. تو ہمارے یہاں بہت سی اسکیمز ہیں جو آپ نے امپلیمنٹ کی ہوں گی, جو بہت سی اسکیمیں جن کا نتیجہ بھی آیا ہوگا. تو وہ اسکیمز کون سی تھی جو آپ نے امپلیمنٹ کی, اور اس کے بعد بات کریں گے کہ آنے والی اسکیمز کون سی ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں پرائم منسٹر امپلائمنٹ جنریشن پروگرام ہے, جس میں کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ ایک نوڈل ایجنسی ہے, نیشنل نوڈل ایجنسی ہے, اور بہت ہی بہترین طریقے سے اس میں کام ہو رہا ہے. میں اسکیم کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کمپلیٹلی پیپر لیس اسکیم ہے. کہ بینیفیشری کو اپنے موبائل پہ اپنا پروجیکٹ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے, جو ڈاکیومنٹس ویب سائٹ مانگتی ہے وہ آن لائن ہی اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. کسی دفتر, کسی بابو کے آگے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ودن 45 days بینیفیشری کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں مینوفیکچرنگ یونٹ بنانے کے لیے ہم 25 لاکھ کا لون دیتے ہیں, اب وہ 50 لاکھ بھی ہو گیا ہے. 25 لاکھ میں ان کو 35% کی سبسڈی ملتی ہے. 1 لاکھ پہ فار ایگزامپل 35,000 ان کو سبسڈی ملتی ہے. 5% بینیفیشری کو اپنا لگانا پڑتا ہے. سروس یونٹ کے لیے ہم 10 لاکھ کا سبسڈی اماؤنٹ دیتے ہیں, سیم 35% کی سبسڈی پہ. 10 لاکھ پہ کوئی بھی کولیٹرل نہیں ہے, یہ RBI گائیڈ لائنز ہے. اور کچھ بینکوں کی کچھ شکایتیں ہمیں آتی ہے کہ بینک ان کو کولیٹرل مانگتے ہیں, مارٹگیج مانگتے ہیں. کسی بھی بینیفیشری نے کوئی اور سرکاری اسکیم نہیں لی ہونی چاہیے, یہ پہلی اسکیم ہونی چاہیے تب, کیونکہ اس میں آدھار جڑا ہے, سارا آن لائن ہمارے پورٹل پہ آ جاتا ہے. یہ ایک بہترین اسکیم ہے. اس میں ایجوکیشن کوالیفیکیشن کی بالکل ضرورت نہیں ہے. کوئی بچے
में छोड़ देते हैं, 8वीं फेल होते हैं, ड्रॉप आउट्स होते हैं, 10वीं, और फिर वो कुछ अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बैंक उनको लोन नहीं दे पाता है। तो हमारी स्कीम्स के थ्रू ऐसे लोगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये बेहतरीन स्कीम है। इसी स्कीम को देख के हमारे यहाँ पे यूटी में हमने लास्ट ईयर नवंबर में एक स्कीम लॉन्च की है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। कारण ये था कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कुछ हम नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं, जैसे फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, टूरिज्म को, जो जम्मू कश्मीर को ध्यान में रख के इसमें हमने ऐड किया है। साथ में एनिमल पोल्ट्री वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री को लेके, वूल भी है, वूल बैंक तो हमारा अपना है जी। तो इसमें लोग कुछ भी जो उसमें माइनस हो जाता है वो रूरल इसमें शामिल हो जाता है। तो ये जान के कश्मीर के लिए बनाई गई है। देखिए हमारे पास एक रूरल एम्प्लॉयमेंट पहले भी स्कीम थी, जनरेशन प्रोग्राम था, ये प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि अब ये वो बन गया। ये पहले नाम कुछ और था, पर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, हाँ, अब इसका ये नाम है। जैसे आपने कहा कि फ़ोन पे आपने सारा फुलफिल की, जो भी आपको चीज़ें की ज़रूरत है वो पूरी की, तो कोई क्राइटेरिया होगा कि जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी बात चली जाएगी आगे, कुछ चीज़ें कंफर्म करनी होंगी, बाकी चीज़ें होंगी, वो कैसे होती हैं? देखिए जैसे पोर्टल पे बेनिफिशरी ने फॉर्म जमा कर दिया, फिर एक DLTFC मीटिंग होती है जहाँ पे खादी बोर्ड के लोग होते हैं, बैंक के लोग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी इसको बोलते हैं, डीसी ऑफिस के कोई भी जा सकते हैं या खुद डीसी साहब इसमें इंटरैक्शन कर सकते हैं बेनिफिशरी से। कभी कोई ऐसा होता है, कोई डॉक्टर होता है, वो कोई और कारोबार करना चाहता है, तो उस इंटरैक्शन के लिए, वो जानकारी के लिए वो फॉर्म्स को देख के किसी को बुला सकते हैं या सबको भी बुला सकते हैं। एक सिंपल इंटरैक्शन है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। जैसे आपने पहले कहा कि अगर पहले कोई लोन लिया हो या पहले कोई स्कीम का फायदा उठाया हो, फिर वो नहीं आता है, तो वो आपको क्रॉस चेक करना है। उसमें भी हमने अभी थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। हमने ये हिदायत दी थी कि जब ये DLTFC हो, हर महीने एक बार होनी चाहिए DLTFC, उसमें इन बेनिफिशरीज के सारी बैंक डिटेल्स उस DLTFC में होनी चाहिए, ताकि वो सारा रिकॉर्ड उसी पे आए। क्योंकि क्या हो जाता है, बेनिफिशरी अपलोड फॉर्म करता है, फिर वो 45 दिन बाद बैंक की सैंक्शन का वेट करता है, 45 दिन के बाद उनको पता लगता है आप इस स्कीम के हकदार नहीं हो सकते हैं, रिजेक्ट होता है, तो हम उसको पहले ही उस प्लेटफॉर्म से रिजेक्ट कर देते हैं ताकि बेनिफिशरी को ज्यादा सफर ना करना पड़े। सही बात है। जैसे आपने कही कि ये आसान तरीका आपने अपनाया है ऐसे ये करने का। एक और चीज भी है कि इसमें एक इंडिविजुअल ही करेगा अप्लाई या सोसाइटी बना के भी लोग करते हैं? सोसाइटी के लिए हमने क्लस्टर्स खोले हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगर आप देखें, जैसे मैंने कहा, ऊपर वाले की हम पे इतनी मेहरबानी है कि हर चीज में, मिट्टी को भी अगर हम कश्मीर के लोग हाथ लगाए तो सोना बन सकता है। बस हमें वो जानने की जरूरत है कि हमारे यहाँ की चीजों का वैल्यू क्या है। अनंतनाग साइड आप जाएं, वहाँ क्रोल का काम बहुत ज्यादा होता है। हर गांव में लड़के लड़कियां गांव में बैठ के क्रोल का काम करते हैं, 12 महीने वो क्रोल का ही काम करते हैं। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां होता है। हर गांव में लड़के लड़कियां गांव में बैठ के क्रोल का काम करते हैं, 12 महीने वो क्रोल का ही काम करते हैं। लेकिन कपड़ा, धागा और हमारे 6 महीने सख्त मौसम की वजह से वो कपड़ा नहीं सुखा पाते हैं। तो हमने रेनीपुरा में, अनंतनाग रेनीपुरा में क्रोल का क्लस्टर शुरू किया है, जिससे अराउंड उस क्लस्टर के करीब 5-6 गांव उसका फायदा उठा सकते हैं। वहाँ वॉशिंग है, डाइंग है, धागा हम प्रोवाइड करते हैं, कपड़ा प्रोवाइड करते हैं। हमारा काम है सिर्फ वो बनाना और उन्हीं गांव वालों को वो हैंड ओवर करके चलाना। आप कहती हैं कि जिस इलाके में आपको लगता है कि किस चीज का हुनर है, उसमें वही प्रमोट करते हैं। उस गांव में आर्टिजन होने चाहिए, वही चीज प्रमोट की जाती है उस गांव में। तो फीडबैक क्या मिलता है फिर आपको? ये अभी हमारा रेनीपुरा का है। बडगाम में सोजनी का काम होता है।
रडबुग में, वहाँ हमने सोजनी का क्लस्टर शुरू किया है। पूरे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में शहद बहुत मशहूर है। पहली बार अलग स्कीम है आपकी? जी नहीं, इसी क्लस्टर में हमने किया है। हमने क्लस्टर ही बनाए हैं ताकि इससे पूरे गांव, ये तो स्कीम्स है कि इंडिविजुअल्स को बेनिफिट हो, क्लस्टर्स को आसपास के 5-6 गांव में हम फायदा देना चाहते हैं, बिकॉज आप इंडिविजुअली खुद का काम कर रहे हैं, क्लस्टर से आप गांव वालों को फायदा, 5-6 गांव को फायदा देते हैं। बांडीपुरा में सुला हनी फेमस है, तो वहाँ बॉटलिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हनी होगा। वहाँ पे हम बी हाइव्स देंगे, बी हाइव्स हमने दी है, बी हाइव्स की ट्रेनिंग हो रखी है। उन फार्मर्स से हम बी हाइव्स से ये जो हनी वो कलेक्ट करेंगे, वो हम लेंगे, वही लेंगे, हम ही लेंगे, हम ही मार्केटिंग करेंगे, बॉटल आप करेंगे जी, पैकिंग भी हम ही करेंगे, क्योंकि मशीन तो आप चलाएंगे, वो नहीं चलाएंगे जी, वो क्लस्टर भी वही लोग चलाएंगे जो उसके आसपास होंगे। इसके बाद CFC बनती है, हम उन्हीं को हैंड ओवर करते हैं। अच्छा जी, ये जैसे इसलिए ये सवाल मैंने पूछा कि क्लस्टर और सोसाइटी बना के काम करेंगे तो ज्यादा लोगों को इकट्ठे फायदा होगा और हो सकता है आउटपुट भी अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे आपने कहा वैल्यू एडिशन, हमारे प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है, इसमें वैल्यू एडिशन की कमी रह जाती है। यानी हम बनाते अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर जैसे हमें उसको आगे लाके बेचना है ताकि प्रमोट नहीं, मार्केटिंग नहीं है सही तरीके से। देखिए कश्मीर के इन हालात में भी हम इन्हीं चीज़ों पे अभी तक ही चल रहे हैं, चाहे शॉल हो, कारपेट हो, पर धीरे धीरे ये कारोबार खत्म हो रहा है, बिकॉज जो सदियों से कोई कारीगर था उसका बच्चा वो नहीं करना चाहता है। ये स्कीम्स उनके लिए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनका मेहनत बहुत ज़्यादा है लेकिन हासिल बहुत कम है। तो जब हम उनको, हमारे साथ वो राब्ते में आते हैं, ये स्कीम लेते हैं, तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे साथ रजिस्टर होते हैं। हमारी खादी की अराउंड 2000 स्टोर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, तो वो डायरेक्टली उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक क्लियर हो जाता है वहीं के, हम उनको मार्केटिंग भी दे रहे हैं। आपके माध्यम की यहाँ बताना मैं चाहूँ कि पहली बार कश्मीर में हमने खादी भवन बनाने का निर्णय लिया है और पाइपलाइन में है, कुछ टाइम पे वो भी बन जाएगा। वहाँ पे शोकेस हो सकता है, आपने दिल्ली में देखा होगा कनॉट प्लेस में एक बहुत ही बड़ा खादी भवन है, वहाँ पे दुनिया भर की हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स की चीजें आपको अवेलेबल है खादी को रिलेटेड, हाई क्वालिटी की चीज, हाई क्वालिटी, और पूरा वो उन्होंने स्टैंडर्ड हमने मेंटेन वहाँ कर रखा था। सेम मैं कश्मीर में चाहती हूँ कि हमारे जो आर्टिजन है बाहर जाते हैं बेचने के लिए, यहीं से उनको प्लेटफॉर्म मिले। जैसे ये तो विलेज की स्कीम है, जो शहर में होगा ये काम करता, उसके साथ ये एसोसिएटेड नहीं है क्या? हुनर जो है वो गांव में है, करने वाला गांव में है, उनसे हम लोग लेते हैं, जो हम हमारी स्कीम से थ्रू ये रजिस्टर हो जाते हैं, तो इनकी डायरेक्टली हमारे साथ मार्केटिंग जैसे पेपर माशी का क्लस्टर, बाकी क्लस्टर यहाँ शहर में भी हैं, लेकिन शायद उनकी अलग स्कीम्स हो, इसमें ना आते हैं। क्लस्टर्स में नहीं है ऐसा अभी भी कुछ। अच्छा, अभी नहीं, अभी इंडिविजुअल ही लोग कर रहे हैं। हाँ, इंडिविजुअल कर ये रहे हैं, पहली बार क्लस्टर्स बनेंगे। सही बात है, वो इंडिविजुअली कर रहे हैं और वो शायद किसी और स्कीम में आते हैं जो इसमें नहीं आते हैं। वो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, बाकी स्कीम्स के स्किल डेवलपमेंट में भी आते हैं। आपका स्किल डेवलपमेंट से कोई राबता है? हम ट्रेनिंग देते हैं, हमारे यहाँ पे कोई भी, हम कोई विलेज अडॉप्ट करते हैं, वहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग बच्चे करना चाहते हैं, जो भी उनकी डिमांड होती है। आजकल तवज्जो मैं दे रही हूँ कि मोबाइल रिपेयरिंग हो, कंप्यूटर की ट्रेनिंग हो, क्योंकि सारा टेक्नोलॉजी के साथ आजकल ज़माना चल रहा है। फिर जो जैसे उन्होंने कंप्यूटर रिपेयर या मोबाइल रिपेयर की ट्रेनिंग की, फिर वो हम ही से 10 लाख का लोन लेते हैं और अपना यूनिट शुरू करते हैं। जैसे आपने कहा पहले भी कि कुछ वो स्कीम के बारे में कि 35% सब्सिडी है, उसमें लोन मिलता है, लोन बैंक के जरिए मिलता है, जेके बैंक आप फैसिलिटेट करते हैं? हाँ, फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि मामला ये है कि जहाँ ये लोन का मामला होता है वहाँ बड़ी परेशानी होती है, जो इंडिविजुअल हो, जो यूथ हो, जो ये लोन लेने जाए। जी, जितनी भी मुश्किलें पहले आती थी उसको ये हमने ऑनलाइन सिस्टम करके बहुत आसाइश तरीके में बेनिफिशियरी तो को आपके भी स्टार्टअप्स होंगे? हमारे बहुत है, बहुत कामयाब यूनिट्स हैं हमारे यहाँ पे। मैं स्लाइड आपको दिखाना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी ही देरी के कारण आप नहीं तो लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे मॉड्यूलर किचन बन रहा है, हमारे यहाँ पे डेयरी फार्म्स हैं, हमारे यहाँ पे बेडिंग बनाने की। यहाँ ही बना रहे हैं कि ला रहे हैं? कश्मीर में बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं। पर्पस इसका यही है कि गांव में रह के
जो व्यक्ति है वो गांव में ही अपना काम करे, जी रोजगार वहां मिले, शहर की तरफ ना आए, शहर की तरफ ना आए। ये कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री जी का, ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट था, हम वही फॉलो कर रहे हैं। खादी इज बिकॉज ऑफ गांधी जी, हम वही फॉलो कर रहे हैं। खासकर ये खादी पे जो भी चेंजेस आप देख रहे हैं, तो ये सारा प्रधानमंत्री जी के थ्रस्ट का है, उनकी डिटर्मिनेशन का है कि जो व्यक्ति, क्योंकि यूजुअली देखिए गांव से लोग शहर आते हैं काम ढूंढने के लिए, तो हम उनको अपने गांव में ही काम दे रहे हैं। हुनर उनके पास है, घर उनके पास है, तो वो गांव से उधर इधर ना जाए। ये देखिए स्किल पे बड़ा थ्रस्ट है जी, प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का, आत्मनिर्भर की बात हो रही है वहाँ, और इसमें आपने भी थ्रस्ट किया होगा इस पे। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कश्मीर, उसके लिए खुशहाल कश्मीर स्कीम पहली बार भारत सरकार ने खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड को दी है, 100 करोड़ की। अच्छा, उसमें हमने क्लस्टर्स बनाने हैं एनिमल हस्बेंड्री को लेके, बाकी डिपार्टमेंट जहाँ पे भी लोग करना चाहते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमारा रहेगा। 100 करोड़ उसके ऑलरेडी आ चुके हैं फॉर क्लस्टर्स। अच्छा, इसमें कहीं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का अमल दखल तो नहीं है आपके साथ? J&K डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के पास साथ रहता है, हमारा तालमेल इकट्ठे ही रहता है। फैसले किसने लेने होते हैं? फैसले तो किसी ने नहीं लेने होते हैं, बेनिफिशियरी की मर्जी होनी चाहिए सिर्फ। फिर वहां जाके बड़ी मुश्किलें होती हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई कागजी या फाइनल डिसीजन पे कि बेनिफिशियरी कर सकता है, उसमें इंडस्ट्रीज का कोई ऐसा रोल नहीं है। पर रजिस्ट्रेशन फाइनली फिर वो जाके इंडस्ट्रीज में ही हो जाता है। जी जी, आपका शायद ये जैसा मैं समझ पा रही हूँ कि इसमें दखल अंदाजी तो नहीं होती है। हमारी स्कीम में जब बेनिफिशियरी अपलोड करता है, वो मेरे पोर्टल पे आता है, मेरे महकमे के पोर्टल पे आता है, डीसी साहब के पोर्टल पे आता है। जहां रुकती है कहीं फाइल 45 दिन से ज्यादा, हम वहां पे सिर्फ उतना ही इंटरवीन करते हैं कि ये फाइल, ये केस रुका क्यों है। बस उसमें एक ही सिबिल स्कोर उस व्यक्ति का ठीक होना चाहिए। अच्छा, सही बात है। आपने कहा कि स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, इसमें एक और चीज़ भी है, कुछ लोग रिवायतन काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रिवायतन नहीं कर रहे थे अब करना चाहते हैं, तो उनको आप ट्रेन करते हैं? जी। कोई भी जहाँ यहाँ पे हमारा पामपुर में एक सेंटर है खादी का, वो करीब 28 साल बाद हमने रिवाइव किया है। वहाँ गांधी जी, महात्मा गांधी जी आए थे, उस पेड़ के नीचे बैठे थे, पहली बार वहाँ पे उनकी प्रतिमा वगैरह हमने लगाई थी। पूरा खराब हो गया था फिर सैलाब के बाद भी, तो उधर हम 150 बच्चों को हर महीने ट्रेनिंग देते हैं। डिमांड पे है, लड़कियां हैं जैसे वो कोई तिल्ले का वर्क करना चाहती है, कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती हैं, मोबाइल रिपेयर, जो भी डिमांड में होता है हम वहां पे वो ट्रेनिंग करते हैं। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती हैं, मोबाइल रिपेयर, जो भी डिमांड में होता है हम वहाँ पे वो ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे आपने शुरू में की अखरोट की, वॉलनट की बात, तो वॉलनट हमारे यहाँ थोड़ा बिखरता जा रहा है, तो उसको क्या कर रहे हैं आप उसके हवाले से? देखिए, हम डायरेक्टली किसी भी हवाले से कुछ कर नहीं सकते हैं, बट जो भी ये कारीगर है, इनके हुनर को हम जिंदा रखने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, बिकॉज बहुत सारा जो यहाँ पे आर्टिस्ट है वो फाइनेंशियल सपोर्ट के प्लेटफॉर्म के कारण दबा जा रहा है, कमजोर हो रहा है, तो हम उनको वापस वो सपोर्ट दे रहे हैं ताकि वो इस हुनर को जारी रखें। सही बात है, क्योंकि ये क्राफ्ट दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, तो इस क्राफ्ट को जिंदा भी रखना। हमारे यहाँ पे जितना भी हुनर है, चाहे आप एम्ब्रॉयडरी देखिए या आप वॉलनट पे काम देखिए, ना तो इसको किसी डिजाइनर ने समझाया होता है कि क्या नक्शकारी करनी है, न कलर का मालूम होता है। जिस कहीं बगीचे में बैठा होता है, पहाड़ का रंग ले लेता है, नदी का रंग ले लेता है, पत्ते का डिजाइन ले लेता है, और पूरा वर्ल्ड ओवर ये हमारा फेमस है। सही बात है। इसमें एक और चीज जो मॉडर्न इंटरवेंशन आपको शायद आपने की भी हो, कि अब मॉडर्न डिजाइन की भी जरूरत है। देखिए, जैसे हमारा ट्रेडिशनल चरखा है, उसके बदले हमने 8 स्पिंडल 16 स्पिंडल चरखे बनाए हैं, सोलर चरखे बनाए हैं,
जहां मेहनत एक औरत एक ही उस पे एक गुंडी निकलती थी, इकट्ठे इसमें 8 और 16 निकलते हैं। जो वो घंटे में एक बना पाती थी, वहां उसके बदले वो 8 भी बना पाती हैं और 16 भी बना पाती, मींस उस आर्टिजन की वेजेस बढ़ गई जी, और जिनका आउटपुट ज़्यादा हो गया ना। एक और चीज़ जो मैं कह रहा था कि जैसे आप शॉल का डिज़ाइन देखिए, बाकी चीज़ों का डिज़ाइन देखिए, सोजनी का डिज़ाइन देखिए, तो इसमें कुछ नई डिमांड भी होंगी, मॉडर्न डिज़ाइन भी कहीं बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आपके पास मास्टर्स या ट्रेन करने वाले लोग हैं अभी जो ट्रेन करेंगे? अभी देखिए, मैं फिर बताऊं कि मतलब यहाँ पे किसी भी आर्टिजन को ट्रेन करने की जरूरत नहीं, ये पैदाइशी हमारे चेंज अगर लाना पड़ता है कभी, नई चीजें भी बनानी पड़ती बिल्कुल बिल्कुल, हम चेंज के लिए बिल्कुल तैयार है अगर कुछ ऐसा चेंज हो, पर जो हमारा ये ऑलरेडी बॉर्न कला है, इसको कोई चेंज तब्दील करने की जरूरत नहीं है। तब्दील ना करें, मैं कहता हूँ एडिशन के लिए। हाँ, कुछ जैसे हमने जब खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन में थे, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट और पैटर्न को चेंज करने के लिए हमने डिजाइनर्स को लिया था, जिसमें ऋतु बेरी थी। यहाँ पे पहले हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन हो, लोग आए, इस काम को आगे लेके चलें। पहले यहाँ पे 32 करोड़ थे सब्सिडी अमाउंट प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के, बड़े सालों तक, और बड़े सालों तक ये बहुत पीछे यहाँ पे काम हुआ करता था। 32 करोड़ से 82 करोड़ सब्सिडी पैसा भारत सरकार ने दिया, जबकि देखा कि लोग काम करना चाहते हैं, लोग अपने यूनिट्स खड़ा करना चाहते हैं। फिर एक टाइम आया, इन्हीं मैं कुछ सालों की बात कर रही हूँ, 1-2 साल जब से मैं देख रही हूँ, हर स्कीम में टारगेट होता है जी। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के लिए कोई टारगेट नहीं है। जिधर तक जाएं, जहां तक जितने लोग आना चाहते हैं, जितने लोग काम करना चाहते हैं, उनके लिए सब्सिडी हम प्रोवाइड करते हैं। REGP जो पिछले नवंबर में हमने लॉन्च की है, 5 करोड़ का बजट था, 5 करोड़ हमने नवंबर से मार्च तक यूटिलाइज किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने वो स्कीम का सक्सेस देख के हमको 25 करोड़ दिया है। इन्हें आप कह रही हैं कि लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं और काम कर रहे हैं और पैसा यूटिलाइज हो रहा है। एक और चीज हिना जी यहाँ जानना चाहेंगे कि जैसे काम किया उनने, उसके बाद वो उनकी गाड़ी कैसे चली? सक्सेसफुली चल रही है, सक्सेसफुली आप ट्रैक रखते हैं? बिल्कुल, हमारी सक्सेस स्टोरीज है बहुत सारी, ट्रैक भी रख रहे हैं। एंड ये पहले वाला सिस्टम नहीं है कि पहले जो कॉन्सेप्ट था सब्सिडी ले ली एंड हम गायब हो गए, बिल्कुल वैसा नहीं है। बैंक ट्रैक रखती है, महकमा ट्रैक रखता है, क्योंकि आपने उसके बाद भी हो सकता है उसको कोई मुश्किल हो, कोई चीज ना कर पाए, तो उसका साथ देना है, हैंड होल्डिंग करनी है, ताकि बहुत से नए भी होते हैं इस काम में, क्योंकि हमने देखा है नौजवान जो आए हैं वो, उनको शौक है कि वो चीज प्रमोट करें, वो रिवायतन ये काम नहीं करते। हमने पिछले साल कुछ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लोगों को टूर पे लिया था, अलग अलग जगहों पे, कि कश्मीर के बाहर भी क्या काम है, मार्केटिंग कैसे होती है, प्रोडक्शन लोग कैसे करते हैं। सो इसके लिए हमने मुख्तलिफ गाँवों से लोगों को लिया था, आर्टिजन्स को लिया था एक एक्सपोजर विजिट के लिए, और वो वहां से आए, कॉन्सेप्ट उनका चेंज हो गया मार्केटिंग को लेके, तो वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। 100% मार्केटिंग आप ही करते हैं लगभग। जो ये यूनिट्स बनाते हैं, इनकी खुद ब खुद मार्केटिंग हो जाती है, जहाँ पे कहीं बीच वाला तो नहीं आता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए यहाँ पे हमारे गीजर बन रहे हैं जी, बन रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी डिमांड है। हमारे यहाँ पे जो मॉड्यूलर किचन पहली बार बन रहा है, पहले बाहर से ही आता था, 5-5 लाख का मॉड्यूलर किचन शायद बनता है, उससे भी ज्यादा। तो वो यहीं पे जब मैन्युफैक्चरिंग यही होती है, फ्रेट कॉस्ट घट जाती है, लोगों को भी आसाइश होती है, एंड उनकी खुद की मार्केटिंग खुद ब खुद ही बन जाती है। ये बड़ी अच्छी बात है कि सेक्टर बदल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, बाकी चीजों में लोग बहुत अच्छे से सामने आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता कभी फंड अंडर यूटिलाइज रहा? हमारे यहाँ पे जो 5 करोड़ मैंने आपको बताया, वो हमने नवंबर से मार्च तक यूटिलाइज किया। वो देख के ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 करोड़ दिया कि लोग हैं वहां पे, पहले की तरह लैप्स होके वापस नहीं गया है। अच्छा। इस बार, और मैं आपको बताऊं, पहली बार जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड नंबर 1 MSME में आया। वो मैंने देखा, बिल्कुल सही है, डिस्पाइट ऑफ इंटरनेट बैन। सही है, जबकि ये सारा ऑनलाइन है। हमारे अफसरों ने ये फाइल्स लेके DC ऑफिस से अपलोड किए, पिछला साल भी हमने जाया नहीं होने दिया, हमने केसेस दर्ज किए। आपके पास बहुत सी केसेस होंगे अभी पेंडिंग, जो लोग चाह रहे होंगे ये करना? हो रहे हैं, हमारे कोई मेजॉरिटी अप्लाई तो कर रहे होंगे। बिल्कुल, हर दिन ऑनलाइन होता है, हर महीने केसेस जाते हैं, हर महीने जाते हैं। तो ये नहीं है ऐसा कि हमने जनवरी से शुरू किया तो दिसंबर तक हम सैंक्शन करते हैं।
جو مہینے میں کیسز آتے ہیں اس کی DLTFC ہوتی ہے اسی مہینے میں منتھلی بیسس منتھلی بیسس پہ. جیسے اچھی بات ہے یہ کہ ایسے آیا فنڈ یوٹیلائز ہوا, کیونکہ بہت سی اسکیمز ہماری یہاں ہیں, فنڈز تو آتے ہیں وہ یوٹیلائز ہوئے بغیر واپس نکل جاتے ہیں. اب جو آدمی اس میں چل پڑا جیسے آپ نے کہا, پھر آپ اس کو تھوڑا دیکھتے بھی ہیں, ہینڈ ہولڈنگ بھی کرتے ہیں, اس کے بعد یہ تو نہیں ہوا کہ بہت سے, ضروری نہیں آپ اس کا ٹریک رکھتے ہو کہ وہ بعد میں یہ چھوڑ دیں, کہیں اور چلا جائے. ان کی اپنی کچھ ایسے بھی بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ لوگ کچھ اپنے حالاتوں کی وجہ سے اس کو کاروبار کو شروع نہیں کر پاتے, لیکن بینک ہوتی ہے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے. تو کیا کوئی یونٹ, ان کا یونٹ کوئی اڈاپٹ کر سکتا ہے؟ ایسا کچھ ابھی یہ نہیں ہے, اس پہ نرنے نہیں ہے. یعنی وہ آپ کو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے اس نے یہ لیا, پھر کہیں نوکری مل گئی, کچھ ہو گیا, وہ چلا گیا. زیادہ سے ویسے میں نے یوزولی دیکھا ہے اتنا سکسیسفل کر رہے ہیں لوگ کہ چھوڑ نہیں رہے ہیں. 3 سے 5 سال میں لوگ اپنا یونٹ کھڑا کرتے ہیں, اچھا ان کا چلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہی لوگ کرتے ہیں جن کو نوکریاں نہیں مل پاتی ہے. جیسے پرائم منسٹر امپلائمنٹ جنریشن میں قریب لوگ 40 سال تک ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی سرکاری نوکری ملے, تو اس میں کوئی ایج بار نہیں ہے, کبھی بھی جا کے آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. گھر کا کوئی بھی ممبر کر سکتا ہے. اب ہمارے پاس 2 منٹ باقی ہیں, آپ 2 منٹ میں جاننا چاہیں گے کہ آپ نے نیا کیا لایا ہے, اب KVIB کے پاس نیا کیا ہے آفر کرنے کو؟ نیا ہم پورا فوکس کر رہے ہیں ہنی مشن پہ. جی, کشمیر کا جتنا بھی, خاص کر یہ پرائم منسٹر, آنریبل پرائم منسٹر بھی اس پہ بہت سویٹ کرانتی پہ زور دے رہے ہیں. ہر فصل کی پروڈکشن کے لیے مدھو مکھی لائف کے لیے بہت ضروری ہے, تو ہنی کو ہم بہت زیادہ. کوئی اسپیسیفک ریجن لیے ہیں؟ پورا کشمیر ہمارا ہے, ہم پورا واتاورن ہمارا. سیفرن پہ بھی کچھ کیا ہے؟ سیفرن پہ ابھی ہم نے نہیں کیا. ہمارے بہت سارے یونٹس ہیں جو انڈیویجول لوگوں نے شروع کیے ہیں پیکنگ کے لیے. ڈرائی فروٹ پیکنگ ہے, اس میں سیفرن بھی آتا ہے. سلک تو ہوگا ہمارے یہاں پہ سلک نہیں ہے. اچھا, سلک کیونکہ وہ زیادہ اس کا مشین کا کام, مشین کا نہیں, ہمارے یہاں پہ پروڈکشن نہیں ہے, بہت کم ہے, مجھے پتا ہے بالکل. ملبری ہے, وہ سلک فیکٹری ہی یوز کرتی ہے, دھاگا بناتے ہیں, اس کا دھاگا بناتے ہیں. تو بہت اچھی باتیں آپ نے کہی, اور یہ نوجوانوں کے حوالے سے, اور لگا کہ کوئی محکمہ یا کوئی اسکیم ہے جو چل رہی ہے, لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, آگے بڑھ رہی ہے اسکیم. ہنا شفیع بٹ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئی دوردرشن کے اسٹوڈیوز میں. حالات حاضرہ میں آپ نے کھادی ولیج انڈسٹریز بورڈ کے حوالے سے بات کی اور بتایا ہمیں اس کی کیا اسکیمز ہیں. آپ کے ساتھ یہ اپروچ کر سکتے ہیں لوگ ان کے ساتھ, اور اپنی اسکیم لے کے جا سکتے ہیں, آن لائن کر سکتے ہیں. آپ ان کے ویب سائٹ پہ جائیے, آپ کو سب پتہ چل جائے گا. اور ناظرین, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, ملتے رہیں گے حالات حاضرہ میں. خدا حافظ. من کی بات. وزیر اعظم جناب نریندر مودی بابن پنس ریتوار من کی بات پروگرامس من 27 جولائی صبح 1 بجے پن خیال. امہ پتہ یہ من کی بات پروگرامک علاقائی زبان مز ترجمہ آکاشوانی تو دوردرشن کیو ساروی سٹیشنوں پہ نشر کرنے. من کی بات پروگرامک علاقائی زبان مز ترجمہ یہ دوبارہ رات 8 بجے آکاشوانی تو دوردرشن کیو ساروی سٹیشنوں پہ نشر کرنے. یاد تھیو آتوار 27 جولائی صبح 1 بجے من کی بات. کورونا وائرس جیسی وبا سے بچنے کے لیے غیر ضروری سفر سے بچیں. ناقابل تنسیق سماجی تقریبات میں کم سے کم مہمانوں کو مدعو کریں. ہر طرح کے ہجوم سے بچیں. دکان پر صارفین کو غیر ضروری طور کوئی بھی چیز چھونے نہ دیں. ہر وقت ماسک کا استعمال کریں. اگر کسی نے ماسک نہ پہنا ہو تو اس کو پاس نہ آنے دیں. سینیٹائزر ہمیشہ ساتھ رکھیں اور اس کا متواتر استعمال یقینی بنائیں.